سنو مرزائیوں کا اعتراض، قادیانی کہتے ہیں مسئلہ ہی حل ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا، حضور اس وقت سے خاتم النبیین ہیں۔ تو پتہ چلا پیدائش آدم سے پہلے اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنا دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں، تو کہتے ہیں پھر حضور پاک کے ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی بعد میں آئے، ختم نبوت کا تو تاج مل گیا تھا؟ ہم نے کہا جی ہاں، تو کہا ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد آدم تا عیسیٰ علیہ السلام 1,23,999 پیغمبر آئے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے میں فرق نہیں آیا۔ اب مرزا آ گیا ہے تو فرق کیسا آیا؟ آپ حل کریں اس سوال کو۔ میں کہتا ہوں نا، عقیدہ ختم نبوت پہ لفاظی چھوڑیں، یوں بازو چڑھا کے بات کرنا چھوڑیں، دلائل کی دنیا میں سمجھائیں کہ ہمارے عقیدے پر اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سوال دہراتا ہوں، شاید آپ نہ سمجھ پائے ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک ختم نبوت کا تاج کب سے ملا؟ ہم حدیث پڑھ دیتے ہیں، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، حضور روز اول سے خاتم النبیین ہے۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا، اللہ نے پہلے حضور پاک کو ختم نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بات ٹھیک ہو گئی، جب حضرت آدم کو ختم نبوت کا تاج، حضرت حضور پاک کو ختم نبوت کا تاج ملا، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبی آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں آئے ہیں، کہتے ہیں ان کے آنے سے فرق نہیں پڑا، اس ایک کے آنے سے فرق کیسے پڑتا ہے؟ اور جو عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کا ذوق ہے ہم ختم نبوت پر کام کریں، عقیدہ تو سب کا ہے، کام کرنے والا جو ذوق رکھتا ہے میں اس سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے تو قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت نانوتوی کو پڑھو، آپ کو ان سوالات کے اعتراض کے جوابات تسلی بخش حضرت نانوتوی کی کتب سے ملیں گے۔ آپ شیخ نانوتوی کی کتابوں سے آنکھیں بند کر لو، دل گردے کی بات ہے، اس سوال کا کوئی جواب دے کر دکھائے۔ میں ہاتھ چوم لوں گا، یہ خالہ جی اور ماموں جی اور پھوپھو جی کے گھر کی بات نہیں ہے، دلیل کی دنیا میں بات کرنے کا طرز حضرت نانوتوی نے اس امت کو دیا ہے۔ اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو میں جواب عرض کروں؟ جزاک اللہ۔ اب آپ کی آواز آئی ہے، اس کی وجہ آپ پہلے سہم گئے تھے۔ سنیں، وکیل تکڑا ہو تو پھر بندے کو سہمنا نہیں چاہیے، پھر وکیل کے ذمہ ہوتے ہیں موکل کی گفتگو کو اپنے طرز میں بیان کرنا۔ میں حضرت نانوتوی کی علوم کی روشنی میں بات عرض کرتا ہوں، اس کا جواب بڑا ایزی ہے، بہت آسان ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں لوگوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے، وہ کس پیرائے میں بیان ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اسپیکر کو میں نے پکڑا، سنیں، اسپیکر کو میں نے پکڑا، اگر میں یہ لفظ جلسے میں بولوں اسپیکر کو پکڑا تو اس کا مطلب ہے مائک والے اسٹینڈ اور اسپیکر کو پکڑا۔ اگر میں یہی لفظ اسپیکر کو پکڑا قومی اسمبلی کے فلور پہ بولوں، اس کا مطلب ہے وہاں جو اسپیکر ایم این اے بیٹھا ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو پکڑا۔ اب ہر لفظ کا مطلب جدا جدا ہے، اگر جلسے میں بولوں گا مطلب اور ہے، اسمبلی کے فلور پہ بولوں گا مطلب اور ہے۔ ایک لفظ شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں، یہاں آپ بیٹھے ہیں، اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے ہمارا شعر اسٹیج پر آ چکا ہے۔ اب شعر کا معنی انسان ہے، اگر آپ اس لفظ کو بدلو، اخبار میں خبر آئے دو بندے چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے، شیر آیا اور ایک کو کھا گیا۔ اب ادھر شیر کا معنی درندہ ہے، جملہ ایک ہے، لفظ ایک ہے، مطلب جدا جدا ہے، تو پتا چلا جس لفظ کو جس پیرائے میں بولا جاتا ہے اس لفظ کا مطلب اسی پیرائے میں سمجھا جاتا ہے۔ ایک پیرائے میں بولا ہوا جملہ
दूसरे पैराए में बोलोगे मतलब बदल जाएगा। एक तर्ज पे अदा की हुई बात किसी और तर्ज पे अदा करोगे मतलब बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, हमने कहा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन का जुमला इरशाद फरमाया है, आओ सहाबा के दरवाजे पे जिन्होंने पैगंबर इस्लाम से इस फरमान को सुन के उम्मत को यह फरमान पहुंचाया है, इन सहाबाए कराम के दरबार पे आओ और इनसे पूछो इस फरमान को किस पैराए में हम समझे। अल्लाह के रसूल ने किस वक्त की बात की है, किस नहज की बात की है, किस आलम की बात की है। सहाबाए कराम हमें ये बताते नजर आते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला बयान फरमा रहे थे, अपनी नबुव्वत के अता का असली मकसूद का किस्सा सुना रहे थे। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, लोगों, अल्लाह पाक ने मुझे वजह मकसूद कायनात बनाया है। इस कायनात के बनाने का असल मकसद अल्लाह ने मेरी जात को रखा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया, खातमुन नबिय्यीन भी बनाया, और ये ओहदे अल्लाह ने मुझे उस वक्त दिए थे अभी अल्लाह पाक ने हजरत आदम को वजूद नहीं दिया था। उनकी मट्टी मट्टी में थी, पानी पानी में था। अल्लाह के रसूल ने ये बात अपने दौर की नहीं की, अव्वल दौर की है, आखिरी दौर की नहीं की, स्टार्टिंग के औकात की है। बताना मकसूद ये है कि उस वक्त खत्म नबुव्वत का मतलब और है, आज के दौर में बोलेंगे खत्म नबुव्वत का मतलब और है, क्योंकि लफ्ज खत्म का मतलब दो होते हैं। अगर एक लफ्ज में बोलो माना और होता है, उसी खत्म के लफ्ज को दूसरे जुमले में बोलो माना और होता है। मसलन मैं आपके सामने कहता हूं, ये कारी साहब बहुत अच्छी तिलावत करते हैं, तिलावत इन पर खत्म है, फन इन पर खत्म है, तजवीद इन पर खत्म है। इसका मतलब ये नहीं है इसके बाद कोई और कारी पैदा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है इसके बाद किसी और को कुरान नहीं आएगा। इसका माना ये नहीं है इसके बाद किसी और को मुजव्विद होना, मुजव्विद बनना नसीब नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है इस कारी ने क़िराअत के फन में वो कमाल हासिल किया है जो कमाल गैरों को नहीं मिला, जिसे कहते हैं कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शवी। शेख सादी फरमाते हैं, जब बंदा अपने मामले में, अपने फन में कमाल हासिल कर लेता है, वो दुनिया का महबूब बन जाता है। हमने कहा सुनो, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने उस वक्त मुझे खत्म नबुव्वत का ताज पहनाया है। अगर बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम से पहले की, फिर खत्म नबुव्वत का माना और है। अगर बात करेंगे हुज़ूर पाक के आ जाने के बाद, फिर खत्म नबुव्वत का माना और है। उस वक्त खत्म नबुव्वत का माना यह है, अल्लाह ने जितने नबियों को मकामात देने थे, जितने नबियों को मर्तबात देने थे, जितने नबियों को एजाजात देने थे, जितने नबियों को इनामात देने थे, उन तमाम इनामात को, एजाजात को, उन ओहदों को, उन मर्तबों को अल्लाह ने इकट्ठा किया, हुज़ूर पाक पे रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इकट्ठा करके हुज़ूर पाक की जात में रख दिया है। ये उस वक्त खत्म नबुव्वत का माना है। मसलन मैं बात करता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुआ करने का मलका दिया है, उसकी दुआ की महारत अल्लाह के नबी में पहले मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रब के सामने गिड़गिड़ाने का मलका दिया है, हुज़ूर पाक में मलका पहले रख दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने का जज्बा दिया है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अल्लाह के रसूल को देकर मलका पहले रख दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को इताअत खुदावंदी का जज्बा दिया है, हुज़ूर पाक को अल्लाह ने पहले मुतीय खुदावंद बना दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कलाम करने का मलका दिया है, वो कलाम की महारत ताम्मा हुजूर में पहले रख दी है। अल्लाह ने पिछले अंबिया में हजरत यूसुफ को हुस्न देना था, उस हुस्न को कामिल शक्ल में हुजूर पाक में रख दिया है। अल्लाह ने सब्र अय्यूब देना था, अय्यूब अलैहिस्सलाम का मुकम्मल सब्र हुजूर पाक में रख दिया है। याकूब अलैहिस्सलाम को रोते रोना देना था, उनकी आंखों में आंसू देने थे, हुजूर पाक की आंखों में अल्लाह ने उम्मत के लिए तड़प तड़प के रोने के आंसू पहले ही दिन रख दिए थे। हजरत ईसा को अल्लाह ने दुनिया में भेजना था, उन्होंने नरमी सिखानी थी, उस नरमी को पहले अल्लाह के रसूल में रख दिया। जितने ओहदे, जितने मर्तबे, जितनी शाने, जितने करम और जितने इनामात इन पैगंबरों को मिलने थे, इन नबियों
नबियों को मिलने थे उनकी कलमाल हुजूर में रख दी, उनकी इंतहा हुजूर में रख दी। उन ओहदों का खत्म होने का माना जितने ओहदे इनको मिलने थे इकट्ठे हुजूर में रखे। जैसे आपके सामने मौजूद गुलदस्ता है, इन गुलदस्तों को देखो तो मतलब समझ आता है। आप अपने बाग के दौरे पे जाएं तो आपको एक फूल गुलाब का मिलेगा, एक फूल चंबेली का मिलेगा, एक रात की रानी का मिलेगा, एक सूरजमुखी का मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन तमाम फूलों की खुशबू में इकट्ठी सूंघूं, फिर बाग में मत जाइए, एक एक पौधे का फूल तोड़िए, एक एक पत्ते से फूल निकालिए, फूल इकट्ठे करके गमले में लगा दें, गुलदस्ते में बसा दें, गुलदस्ते में सजाकर अपने आप से उसको खुशबू लें। पता क्या चला, इन खुशबुओं में जितना मकाम पाना है अलहदा अलहदा बाग में मौजूद है। उस वक्त खत्म नबुव्वत का माना यह था जितने नबियों को एजाजात मिलने हैं वो अल्लाह पाक ने हुजूर में इकट्ठे रख दिए हैं। इधर से ले लेके एक नबी को दिया, इधर से उठा उठा के एक नबी को दिया। इसीलिए तो कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आचे खूबा हमादारन के तू तन्हादारी। हुजूर पाक को अल्लाह ने तन्हा वो मकाम दिया है जो बाकी अंबिया को अलग अलग दिया है। ये खत्म नबुव्वत का माना ज़मानी नहीं, खत्म नबुव्वत का माना मर्तबी है। लेकिन जब हुजूर पाक आए हैं बिलफेल तशरीफ लाए हैं, आखिर में मबूस हुए हैं, कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया का ऐलान लेकर खत्म नबुव्वत का ताज अपने सर पे सजा के, खत्म नबुव्वत के तमगे अपने कंधों पे सजा के अल्लाह के नबी आए हैं। अब खत्म नबुव्वत का दूसरा माना दूसरे पैराए में बोला गया है। उस वक्त दर्जे खत्म खत्म नबुव्वत का माना था, अब जमाना खत्म खत्म नबुव्वत का माना है। क्योंकि उस वक्त हुजूर नहीं आए थे तो मर्तबे खत्म थे, अब मर्तबे खत्म वाली शख्सियत खुद आ गई है। अब मर्तबे भी खत्म है, जमाने भी खत्म है।